کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ فوج کے چنار کور نے سیاحتی مقام گلمرگ کے سرحدی علاقے بوٹا پتھری میں ہیلی بورن مشق کی۔ فوجی جوانوں نے اپنے کرتب کا مظاہرہ کیا۔ فضائیہ، بحریہ اور فوج کے ساتھ کشمیر میں یہ اپنی نوعیت کی منفرد مشق تھی۔ کشمیر میں پہلی بار ایسی مشق ہوئی ہے۔ اس کا مقصد فضائی دفاع اور الیکٹرانک وارفیئر آپریٹنگ ماحول میں دشمن کی صفوں کے پیچھے حکمت عملی کے ساتھ فورسز کو داخل کرنے کی مشترکہ صلاحیت کو درست کرنا تھا۔ اس مشق کی نگرانی 15 کور کے جی او سی ڈی پی پانڈے کر رہے تھے۔ ہیلی بورن ٹاسک فورس میں انفینٹری، اسپیشل فورسز اور انڈین نیوی کے مارکوز کے دستے شامل تھے۔ اونچائی والے علاقوں میں کامیاب آپریشن کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا گیا۔ فضائیہ اور بحریہ کے ساتھ ہم آہنگی میں عصری اور جدید ٹیکنالوجی سے میدان جنگ کے تمام پہلوؤں کو شامل کیا گیا۔ No bite. The only thing I want to just say is that is for a long time that my birds were not in the air. It is important to ensure that our capabilities are correct, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. It's a great event because all three services have participated in it, and as you guys have already seen it went off pretty smoothly. اس وقت موجود ہے سیاحتی مقام گلمرگ کے بوٹا پتھری کے سرحدی علاقے میں، اور یہاں پہ فوج کی طرف سے یہاں پہ ایک ونٹر پریپریشن ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے جو ونٹر جب آنے والا ہوتا ہے تو دراندازی میں یہاں پہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ فوج کے جوان جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم تصویروں میں دکھائیں گے یہاں پہ کس طرح ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اس میں فوجی جوان جو ہے وہ اپنی کرتب دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ اپنی بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں اپنی طاقت کا، اور جنگ کا ماحول ہو اور یا دیش کی رکشا ہو، دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے یہ ساری جو پریپریشن ہو رہی ہے، مشق جو ہو رہی ہے۔ منیر حسین، نیوز 18 اردو، گلمرگ۔ راجوری اور پنچ کو کشمیر سے جوڑنے والی مغل روڈ آج تیسرے روز بھی گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے مکمل بند رہی۔ پی ڈبلیو ڈی میکینیکل ونگ کی جانب سے پیر کی گلی تک برف ہٹا دی گئی ہے، لیکن شوپیاں کی طرف سے کام مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی روڈ بند رہی۔ ڈپٹی ایس پی ٹریفک پنچ نے فون پر بتایا کہ ہماری طرف سے روڈ صاف کر دی گئی ہے اور دوسری جانب سے راستہ ہموار ہونے کے بعد روڈ کو کھولا جا سکتا ہے۔ لوگوں نے جلد سے جلد روڈ کھولنے کی اپیل کی۔ ضلع انتظامیہ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے جتنا جلدی ہو سکے تو وہ کھولنی چاہیے، کیونکہ آج 2 دن ہو گئے، موسم بھی بہت اچھا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 24 جو ہے 12 مہینے جو ہے روڈ کھلی رہنی چاہیے۔ ضلع انتظامیہ کو اس کے لیے اس پر بڑی زیادہ سے زیادہ جو ہے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ پیر پنچال کا نہیں پورے جموں پروونس کا جو ہے۔ پیر کی گلی اور دبجن میں برف موجود ہونے کی وجہ سے تاریخی مغل روڈ آج تیسرے روز بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند رہا۔ راجوری کو شوپیاں ضلع سے جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر شوپیاں سے تیسرے روز بھی پوری طرح سے برف نہیں ہٹائی گئی۔ دبجن علاقے میں ابھی بھی 3 انچ برف سڑک پر موجود ہے۔ پیر کی گلی پر بھی پوری طرح سے برف نہیں ہٹائی گئی۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی جموں میں کورونا کے مریضوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ اس وبا کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکمے کئی اقدامات کر رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور جنرل بس اسٹینڈ اور دیگر عوامی مقامات پر ٹیسٹنگ میں تیزی لائی گئی ہے۔ پیش ہے سمیر بھٹ کی یہ رپورٹ۔ جموں ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والے ان مسافروں کو اب سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی طرف سے قائم کردہ سینٹروں سے گزر کر اپنی جانچ کروانی پڑ رہی ہے۔ جموں میں بھی کورونا کے معاملات میں گزشتہ دنوں سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ادھر اومیکرون کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر محکمہ صحت زیادہ ہی احتیاط برت رہا ہے۔ جموں ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ اور بس اسٹینڈ وغیرہ جیسے مقامات پر محکمہ نے خصوصی ٹیمیں تعینات کر رکھی ہیں۔ جن مسافروں نے ٹیکے نہیں لگوائے ہیں ان کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کا RT-PCR ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، سیمپلنگ جو ہے ہماری 24/7 چل رہی ہے۔ اس میں RT-PCR بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو کوئی بھی اگر ان کیس پازیٹیو آتا ہے ہمارے پاس تو ہم اسے ہوم کوارنٹین یا پھر ہمارا جو DRDO ہے وہاں شفٹ کرتے ہیں۔ جس کا 14 ڈیز پہلے کچھ ایسی ہسٹری ہے انٹرنیشنل ٹریولنگ کی، وہ یہاں آ کے سیلف رپورٹنگ کرے، تو ان کے لیے RT-PCR ٹیسٹ جو ہو مینڈیٹری ہے۔ اور ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم انہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں
कि फ्री क्वारंटाइन और जो है हमारे होटल भी उनके लिए क्वारंटीन के लिए रखे हुए हैं। जिन अफराद ने टीके लगवाए हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी है। मुसाफिर भी हुक्काम को अपना भरपूर ताउन पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये न सिर्फ उनके लिए बल्कि दीगर लोगों की सलामती के लिए जरूरी है। हाँ जरूरी है, जो बाहर से आते हैं किस तरह से आ रहे हैं, वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे आके और फैलाएंगे बीमारियाँ, तो उससे अच्छा है कि पहले टेस्ट हो जाएगा, उनको पहले से एडवाइस किया जाएगा क्या है कैसे दी है, कि आगे अदर को प्रॉब्लम ना हो। तो एक हिसाब से अच्छी चीज़ हो रही है। बहुत अच्छा फैसिलिटी है, अच्छा टेस्टिंग वगैरह यहाँ की सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ ऐसे भी ये टूरिस्ट प्लेस है तो इस तरह का होना बहुत अच्छा है। कहीं पे भी बाहर से आ रहे वायरस के लिए ज़रूरी है, टेस्टिंग अच्छा है, होना चाहिए हर जगह। चंद रोज से जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामलात में इजाफा देखने को मिल रहा है। जम्मू खित्ते में कोरोना से मुतासिर ज्यादातर अफराद बैरूनी रियासतों से थे। वो माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए थे। जो शख्स अपने सफरी तफसीलात छुपाने की कोशिश करेगा उस पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। बीजेपी की जानिब से टाउन हॉल पामपुर में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। लीडरान ने बताया कि सिर्फ बीजेपी यहां के लोगों के मसाइल हल कर सकती है। अल्ताफ ठाकुर, वीरजी सराफ, सज्जाद रैना, लतीफ भट्ट, अल्ताफ अहमद मीर और मोहम्मद शफी वानी भी मौजूद थे। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि कश्मीर में पीडीपी की साख खत्म हो गई है, इसीलिए अब महबूबा मुफ्ती दिल्ली में ड्रामा कर रही हैं। ठाकुर ने कहा कि अब यहां के लोग समझ गए हैं और वो उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। देखिए, महबूबा जी कश्मीर में अपना सारा ग्राउंड खो चुकी है। उसके भी जितने भी लीडर्स थे, जितने भी नेता थे, वो उसको छोड़ चुके हैं। अब कश्मीर में उसको सपोर्ट नहीं मिला। अगर उसके पास कश्मीर में सपोर्ट होता, लोग उसके पीछे निकलते, तो वो लाल चौक में, यहाँ जिस तरह से वो करती थी, लाल चौक में धरना पे बैठ के 370 की दुहाई देती। कश्मीर में उसके पीछे कोई चलने को तैयार नहीं, इसलिए 6 लोगों को लेकर वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक क्वेश्चन पीडीपी से है, महबूबा जी से, मुझे बताइए, आप लोगों को गुमराह कर रही हो कि 370 वापस लाएंगे, क्या लॉजिक है आपके पास? और कोई तरीका तो बता दीजिए ना लोगों को कि 370 कैसे वापस आएंगे। देखिए, 370 के लिए 300 से ज्यादा जो एमपीज है वो होने चाहिए, वो आपके पास है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली की एजेंट हैं। 370 हटाने में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का हाथ है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने कलंगाम हंदवाड़ा में पार्टी की वुमेन्स मीटिंग के दौरान किया। पार्टी के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने कहा, आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीम नहीं, एक तहरीक है। मीटिंग में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो जमात है, जो मुझे तो कहना नहीं चाहिए, उन्होंने उनके वालिद साहब जो है, जिनके लिए वो कह रहे हैं कि ये हम 45 साल पुरानी जमात है, उन्होंने बॉम्बे में बहुत साल पहले कहा था कि हमें 370 चाहिए ही नहीं। यानी कि वो चाहते ही है, क्योंकि वो मुझे लगता है दे आर एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो एजेंट है। उसने तब भी कहा मोदी साहब मेरा बड़ा भाई है। क्यों उस वक्त उन्होंने मोदी ने कहा था उसको कि तू चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। वो यहाँ आया, यहाँ कहा मोदी मेरा भाई है। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वो भी इसी जमात में, वो तो गवर्नमेंट में थे, सरकार में थे, पीडीपी के साथ काम कर रहे थे, वहाँ पर उस वक्त सरकार में थे। उनको पता था, वो कह रहे थे कि मोदी में इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकता था। उनको पहले से ही इस बात की इल्मियत थी कि कश्मीर में कुछ ना कुछ होने वाला है, कश्मीर का ये 370 खत्म करेंगे। वो ये जो जमातें थी उसका साथ दे रहे थे, मोदी का साथ दे रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग बॉडी पुलवामा का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के जिला सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद के अलावा त्राल से हाल ही में एनसी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अब्दुल रशीद ने शिरकत की। लीडरान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब आम लोग मुश्किलात से दो चार हैं। किश्तवाड़ में डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने तमाम डीडीसीज, बीडीसीज और पंचों सरपंचों के हमरा एहतजाज किया। जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे इन अवामी नुमाइंदों का कहना है कि इंतजामिया इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। काफी देर तक एहतजाज जारी रहने के बाद डीसी अशोक शर्मा ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को हल किया जाएगा। एहतजाजियों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाने के बाद मुजाहरा पुरअमन तरीके से खत्म हुआ। वो नहीं सुनी जाती है।
हम PHED के पास जाए वो कहता है हमारे पास कुछ नहीं है, हम मतलब वीडियो के पास जाए वो कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। लोग हमें कहते हैं हमने आपको चुन के भेजा, आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑफिसर हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सुनता है। या मेरा प्रोटोकॉल ये है कि डेवलपमेंट वर्क जो ग्राउंड पे होंगे उनकी मैं पूरी भागीदारी लूंगी। मैं देखूंगी कहाँ कौन सा काम हो रहा, कौन सा इलीगल काम हो रहा, उसको मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ये कैसे कर रहे हैं। उस पर मेरे को बताया जाता है। अगर मैं किसी भी ऑफिसर से कहती हूँ अगर आपने ये काम किया है मुझे कॉपी भेजिए, एक भी ऑफिसर टस से मस नहीं होता है। मतलब कि ये मैं एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रही हूँ, मेरे साथ ये हाल है, तो एक सरपंच और एक पंच जो बेचारे वार्ड्स के, उनकी तो बात ही नहीं है। अदबी मरकज कमराज की गोल्डन जुबली तकरीबात के सिलसिले में मजलिस अल-निसा सुपोर के एहतमाम से कश्मीर वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन में खवातीन की अदबी तकरीब मजलिस निसा के नाम से मुनक़िद हुई। डॉक्टर रफ़ीक मसूदी ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। पहले नशिस्त की सदारत प्रोफेसर फहमीदा हिलाल ने की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुपोर परवेज सज्जाद और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन बट मौजूद थे। डॉक्टर फरहत जबीन को महकमे सेहत, हनीफा कुरैशी को महकमे तालीम और समाजी काम, अशफाक मसूदी को सहाफ़त और डॉक्टर राफिया वली को अदब के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ व असनाद से नवाजा गया। दूसरे नशस्त में खवातीन मुशायरे का इनकाद किया गया। हमारी एक छोटी सी कोशिश रही कि जिन्होंने खवातीन के शोबे में जिन खवातीन ने किसी भी शोबे में अच्छे काम किए हों तो उनको हम थोड़ा सा यहाँ एजाज़ देकर, चाहे एजाज़ छोटा हो या बड़ा, एजाज़ ही होता है, तो हम इसकी पहल करें ताकि और खवातीन में हौसला अफजाई हो, वो भी आगे आए। घर का सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो एक औरत ही है, जहाँ पे उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, एक निज़ाम जो बनाती है घर का और सोसाइटी का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक औरत का होता है। और ये जब ये औरत एजुकेट होती है और एक सोसाइटी में अपना मुकाम बनाती है तो वो सोसाइटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सागर कल्चरल फोरम जकरपटन की जानिब से तरकुलबल पटन में अदबी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। पहली नशिस्त में वादी के उभरते अफसाना निगारों ने अफसाने पेश किए। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी की याद में मुशायरा मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम की सदारत मारूफ शायर और कलमकार जनाब रंजोर तिलगामी ने की। मारूफ शायर और अफसाना निगार नूरदीन होश मेहमान खुसूसी और आबिद अशरफ मेहमान ज़ी वक़ार थे। फोरम के सरपरस्त आला सागर नज़ीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मरहूम शाहिद मसूद बुखारी सिंदिस यादस मन करने मुनासिबत मजलिस सरसी तमसी सरस गसान, चूँकि सारे पता शाहिद मसूद बुखारी सब रेनाउंड जर्नलिस्ट बेस वादी आवाज़ प्रोग्राम तुम करा कालस रेडियो कश्मीर मुशायरा भी हुआ जिसमें कुछ रिसाई नज़में भी पढ़ी गई मरहूम के हक़ में, और इस तरह से एक प्रोग्राम देर तक चलता रहा जिसमें वादी के अतराफ़ व अकनाफ से आए हुए जवान साल शोरा और शायरात ने शिरकत की। अनंतनाग के सिरगफवाड़ा ब्लॉक में तामीर और तरक्की की मुनासिब प्लानिंग और पंचायतों के रोल को उजागर करने की गर्ज से एक इजलास का अहतमाम हुआ। BDC चेयरमैन बशीर अहमद, लतीफ़ खान के अलावा दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की। BDO सिरगफवाड़ा बिलाल अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पंचायतों के जरिए किए जा रहे कामों और मुतल्लिक़ा महकमों की जानिब से ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत बकाया प्रोजेक्टों की तकमील न होने पर तशवीश का इजहार किया गया। जो काम दिए अभी तक वो काम ठंडी बॉक्स में पड़े, जिनमें खासकर स्टेडियम 2-4 है, बहुत सारे काम है। आज हमने वीडियो से और बाकी अफसरों से यही बात की कि अगर पंच सरपंचों ने पैसा दिया तो वो पैसा गया कहाँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवाम के लिए बहुत पैसे वागुजार किए, आपकी वसादत से मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक ये भी बात पहुँचाना चाहता हूँ, हमने बहुत सारे पैसे चाहे PDD को दिया, PHE को दिया, अभी तक वो PHE या PDD के अफसर तानाशाही से लगे हैं। जो पैसे पंच सरपंचों ने दिया उनको चाहे जनरेटर के लिए दिया, चाहे बिजली के लिए दिया, चाहे पीने की पानी के लिए दिया, अभी तक PHE और PDD, खासकर जब भी हम मीटिंग बुलाते हैं PDD और PHE, इस मीटिंग में कभी उन्होंने हिस्सा। जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन कारकुनों ने पहाड़ी बोलने वाले लोगों को ST जुमरे में शामिल करने की मुखालफत करते हुए कहा कि ये दीगर ST बरादरियों के साथ नाइंसाफ़ी है
उनका कहना है कि पहाड़ी बोलने वाले पहले ही मुलाजिमतों में बहुत से कोटे और तहफ़्फ़ुज़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उन्होंने LG से इस फैसले पर दोबारा गौर करने की अपील की। 40 लाख लोग बन जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10% रिजर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई स्टेप लेती है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो ऑलरेडी 42% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में, जिसमें RBA है, ALC है, OSC है, EWS है और PSP, उन्हें जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने PSP 4% दिया है, अगर इस तरह का कोई स्टेप उन्हें लेती है कि उनको भी, लोगों को 10 लाख लोगों को या कुछ भी जो भी नंबर से उनके, उनको उसमें शामिल करती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ब्लंडर होगा और इस कम्युनिटी के साथ पूरा वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।